بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زیورا کے جسم اور سانسوں کی بھینی بھینی خوشبو یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ زیورا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں کسی بڑی خوبصورت دنیا میں گم ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تنہا بیٹھتے ہوئے کبھی کبھی زیورا کی مسکراہٹ اداس ہو جایا کرتی تھی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر کتنی ہی دیر تک ٹھہری رہتی تھیں۔ اس روز زیورا نے بتایا کہ اسے کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے کچھ ہی دن پہلے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، لیکن میرے وعدے میں میری خواہش شامل تھی۔ اس میں جان نہیں تھی کیونکہ میرے چچا نے اپنی بیٹی میرے نام لکھ رکھی تھی۔ میں نے زیورا کو اپنی یہ مجبوری بتا بھی دی تھی۔ زیورا نے یہ کہنے کی بجائے کہ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ آئے گی، یہ کہا کہ بعض لڑکیاں جنہیں چاہتی ہیں ان کے ساتھ گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ زیورا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا تھا، مجھے تمہاری عزت ہی نہیں، تمہارے پورے خاندان کی عزت اور غیرت کا خیال ہے۔ اگر میں ایسا بے غیرت ہوتا تو تمہیں منگنی اور نکاح کے بغیر بیوی بنا سکتا تھا، لیکن تم میرے لیے آسمان کے ستاروں کی طرح پاک ہو۔ میں شاہ جی کے پاس جاؤں گا، زیورا نے کہا تھا۔ وہ مجھے ایسا تعویذ دیں گے کہ میری منگنی ٹوٹ جائے گی اور تمہارا چچا تمہیں اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دے گا۔ میری ایک بات غور سے سن لو زیورا، میں نے کہا ہم بھی انہی شاہ جی کے مرید ہیں، لیکن تم ان کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ میں نے کہا وہ تمہیں جو تعویذ دیں گے وہ راہ مولا نہیں دیں گے۔ زیورا نے یوں بدک کر مجھے دیکھا جیسے میں نے اس کے سینے میں خنجر مار دیا ہو۔ حیران مت ہو زیورا، میں نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ شاہ جی آخر مرد ہیں۔ میں جانتا تھا کہ زیورا میری بات کو نہیں سمجھ رہی۔ میں خود یہ بات کہہ کر گھبرا گیا تھا۔ میں بھی اپنے علاقے کے اس مشہور و معروف شاہ جی کا مرید تھا جو چنن شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اسے بعد میں نے بادشاہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ آپ کو اس کا ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ میں جب زیورا سے کہہ رہا تھا کہ وہ شاہ جی کے پاس نہ جائے، اس وقت میں اور میرا سارا خاندان چنن شاہ کی گدی کا مرید تھا۔ زیورا نے جب کہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا رہی ہے تو مجھے چنن شاہ ایک عام مرد کی صورت میں نظر آنے لگا تھا۔ پھر بھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے پیر کی بے ادبی کر دی ہے۔ زیورا بھی یہی سوچ رہی تھی۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی خانو، زیورا نے کہا، لیکن تم کہتے ہو تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں اب جاؤں خانو؟ اب میں اتنی دیر یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ جب میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چل پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ اس روز کے بعد زیورا مجھے صرف 2 بار مل سکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شاہ جی کے پاس نہیں گئی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ روشن خان زیورا کو بیاہ کر لے گیا۔ میں اس وقت روشن خان کو نہیں جانتا تھا۔ وہ یہی روشن خان تھا، کرنل نارتھ کا اردلی۔ اس نے جب مجھے میرٹھ میں اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام بتایا تھا تو بھی مجھے خیال نہیں آیا تھا کہ زیورا کو یہی روشن خان لے گیا تھا۔ اگر روشن خان مجھے بتا بھی دیتا تو میں نہ مانتا یہ دبلا پتلا سانولا سا آدمی زیورا جیسی حسین اور پاک لڑکی کا خاوند نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اسی روشن خان نے میرے ایک بڑے ہی حسین خواب کو میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ زیورا کی شادی کے کچھ دن بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ میری شادی ماتم سے کم نہ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ میرے ذہن میں اور میری آنکھوں میں زیورا ہنس کھیل رہی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ میرا باپ قتل ہو چکا تھا اور قاتل میرے سامنے گھوم پھر رہے تھے۔ پھر میں بنگال پولیس میں بھرتی ہو کر چلا گیا اور ایسے حالات میں جا پڑا کہ زیورا ایک بھولی بسری یاد بن گئی۔ آج زیورا نے ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر میرے ماضی کے تمام پردے اٹھا دیے۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ روشن خان کے جلدی آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ آ بھی جاتا تو کوئی ڈر نہیں تھا۔ زیورا پردہ نہیں کرتی تھی اور روشن خان مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ کر وہ خوش ہوتا، مگر میں اسے دیکھ کر خوش نہ ہوتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پتہ چل جاتا کہ خانو ڈاکو میں ہی ہوں۔ پھر معلوم نہیں کیا ہو جاتا۔ میں زیورا کے کوارٹر میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ زیورا میرے سامنے گم
गुमसुम खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। उसे मेरे जिंदा सलामत देखकर शायद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। मैं उसे देखता रहा, मेरे जज्बात उबलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पाए रखा। मैं ये देखना चाहता था कि ज़ेबरा क्या कहती या क्या करती है। अचानक वो मुझ पर इस तरह गिरी जैसे गाश खाकर मेरी गोद में गिर पड़ी हो, लेकिन वो पूरी तरह होश में थी। मेरी गर्दन उसके बड़े ही नरमो गुदाज बाजुओं के शिकंजे में आ गई थी। उसका गाल मेरे गाल के साथ लगा हुआ था और वो इतनी जोर से मुझे बेंच रही थी जैसे मेरे वजूद में समा जाने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। हमने ये भी ना देखा कि दरवाजा खुला है। उसका दूध पीता बच्चा सोया हुआ था और दूसरा सेहन में खेल रहा था। दरवाजा वो बंद करते हैं जिनकी नीयत नापाक होती है। अंधेरे चोर उचकों को अच्छे लगते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को दिन की रोशनी में चाहा था। मैं गुनाहगार और नापाक आदमी बन चुका था, लेकिन ज़ेबरा की मोहब्बत को मैं अपने नापाक वजूद से महफूज रखने का अज़म कर चुका था। हमने जिस उजाले में मोहब्बत की थी उस उजाले को मैं तारीक नहीं करना चाहता था। ज़ेबरा पर जज्बात का असेब तारी हो चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे जज्बात से निकाल लाया और उसे अपने पास बिठा लिया। ज़ेबरा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जानती हो मेरी कीमत क्या है? 10,000 रुपया। उसने कहा, लेना चाहोगी इतनी बड़ी रकम? मैंने कहा, तुम्हें इतनी बड़ी रकम बड़ी आसानी से मिल सकती है। रोशन खान आए तो उसे थाने भेज देना। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और उसका चेहरा मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। खानू, मुझे उसकी जज्बात से लरजती हुई सरगोशी सुनाई दी। मैं 10,000 रुपया देकर तुम्हें खरीद लूंगी। मैंने तुम्हें अपने पीर दस्तगीर से आगे समझा था। याद है तुम्हें? तुमने मुझे शाह जी के पास जाने से रोका था और मैं इसलिए नहीं गई थी कि मैं तुम्हें अपना पीर दस्तगीर समझती थी। मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा कर रखूंगी। तुम यहाँ तक किस तरह पहुँचे? इन बातों को छोड़ो ज़ेबरा, मैंने उसे कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे बाजुओं में नहीं, फांसी के तख्ते पर खड़ा हूँ। किसी को जरा सा इशारा भी मिल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम जानती हो क्या हो जाएगा। रोशन खान को मेरी असलियत का इल्म नहीं। उसने रोशन खान को गाली देकर कहा, उसे क्यों पता चलने दूंगी? उसे तो अभी ये भी पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। मेरा सिर्फ जिस्म है जो रोशन खान के पास है। ना ज़ेबरा, मैंने कहा, ऐसा ना कहो, अपनी जिंदगी में जहर ना भरो। मेरी तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो हमें मिल गया है। मुझे ये शख्स कभी भी अच्छा नहीं लगा। ज़ेबरा ने कहा, खुदा से डरो ज़ेबरा। मैंने कहा, ये जैसा भी है इसे खुदा ने ऐसा बनाया है, लेकिन ये खानू नहीं। वो फिर जज्बात में उलझ गई थी, लेकिन मैं उसे हकीकत की तरफ ला रहा था। उसे मेरे तमाम जुराइम का इल्म था। मैंने ये देख लिया और मुझे तसल्ली हो गई कि ज़ेबरा मुझे धोखा नहीं देगी। इसकी एक वजह तो मेरी मोहब्बत थी और दूसरी वजह ये कि उसके दिल में रोशन खान की नफरत थी। मैं कुछ देर और उसके पास बैठा और वहाँ से निकल आया। अगले 2-3 दिन मेरे दिल पर घबराहट तारी रही। ज़ेबरा ने मेरे राज की रखवाली करने का पक्का वादा किया था, लेकिन वो औरत जात थी। मुझे डर था कि ये राज फाश होकर ही रहेगा। इन 2-3 दिनों में रोशन खान मुझे मिलता रहा और मैं इसका रवैया और अंदाज देखता रहा। वो कोई ऐसा चालाक आदमी तो ना था अपने इरादों को मुझसे छुपा कर रख सकता, लेकिन इंसान बड़ी गहरी चीज होती है। किसी के दिल में क्या है कोई नहीं बता सकता। मैंने उसमें कोई शक शुबा वाली बात न देखी। एक रात मुझे रोशन खान के क्वार्टर से शोर शराबा सुनाई दिया। मैं बाहर निकला तो मुझे रोशन खान की सख्त गुस्सीली आवाजें सुनाई दी। मैं देहाती बेतकल्फी के मुताबिक दौड़ता हुआ रोशन खान के क्वार्टर में चला गया। ज़ेबरा अंदर बैठी रो रही थी और रोशन खान फुंकार रहा था और गालियां भी बक रहा था। मैंने जाके पूछा कि उन पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। भाई मोहम्मद खान, रोशन खान ने ज़ेबरा की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा किया है जो तुम आ गए हो। इसे कुछ समझाओ। जब से शादी हुई है ये मुझसे लड़ झगड़ रही है। मैं इसे पहली बार अपने साथ लाया हूँ। यहाँ आकर भी इसने अपनी आदत को नहीं बदला। ज़ेबरा रोशन खान पर बरस पड़ी। उसने बाजू लंबे करके उसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस गैर मर्द को बुला लिया है? मालूम नहीं ये कौन है और तुम अपने घर का पर्दा इसके सामने उठा रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और दुपट्टा अपने माथे पर सरकाती हुई बोली, तुम जाओ जी, ये हमारे घर का मामला है। तुम इसके दोस्त होगे। इसी को समझाओ, मैं किसी गैर मर्द के साथ मुंह नहीं लगाऊंगी। रोशन खान उसके करीब जाकर गर्जा, बकवास बंद कर, ये मेरा बड़ा भाई है। मैंने आगे बढ़कर रोशन खान को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ घसीट लिया। शर्म
शर्म करो रोशन, मैंने कहा, यहाँ आकर लोगों को तमाशा दिखा रहे हो। सुनने वाले कहेंगे कि हमारे इलाके में जंगली रहते हैं। मैंने जेबरा की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कहती हो भाभी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे ही इलाके का रहने वाला हूँ। मैं तुम्हें लड़ता झगड़ता नहीं देख सकता। जेबरा ने मेरी बात खामोशी से सुनी, लेकिन रोशन खान कुछ न कुछ बोलता चला जा रहा था। वो कह रहा था कि ये अपने आप को क्या समझती है, मुझे जूती के बराबर नहीं समझती। मैं इसे इसके माँ बाप के घर बिठा दूंगा, ना तलाक दूंगा ना बसाऊंगा। अपनी माँ को बसा लेना। जेबरा ने जल कर कहा, मैं तुम्हारी सूरत से भी बेजार हूँ। रोशन खान उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपका। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और अपने क्वार्टर में ले आया। उससे पूछा अपनी बीवी के खिलाफ उसे क्या शिकायत है, उसके चाल चलन पर शुबा है। नहीं भाई, रोशन खान ने कहा, मुझे यकीन है कि ये चाल चलन की बड़ी पक्की है। इसमें नक्श ये है कि मेरे घर में एक दिन भी खुश नहीं रही। मेरी हर बात ख्वाह कितनी अच्छी हो और इसके हक में ही हो, इसे बुरी लगती है। आज कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन इसने मेरी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने इसे कहा, मेरी माँ सैकड़ों मील दूर अपने गांव में बैठी है। तुम मेरा सलूक देखो। लेकिन ये अपनी आदत पूरी करना चाहती थी। वैसे ही बहाना बनाकर मेरे गले पड़ गई। मैंने तंग आकर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। मुझे ये सुनकर इत्मीनान हुआ कि रोशन खान ने जेबरा के चाल चलन को बुरा नहीं कहा। कमजोर मर्द औरत पर सबसे जहरीला तीर यही चलाता है कि उसका चाल चलन ठीक नहीं। मैं जानता था कि जेबरा ने इस शख्स को कबूल नहीं किया था, वरना जेबरा खुश रहने वाली लड़की थी। मैंने रोशन खान को मौलवियों की तरह आवाज सुनाना शुरू कर दिया कि लड़ाई झगड़ा बुरी बात है और मर्द को औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस अंदाज से बात कर रहा था जिस तरह उस्ताद बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, झूठ बोलना बुरी बात है। मैंने रोशन खान को ठंडा करके भेज दिया। 2 रोज बाद रात के इसी वक्त मुझे फिर वही आवाजें सुनाई दी। मैं फिर उनके क्वार्टर में जा पहुंचा। मंदिर तकरीबन वही था। उनके दोनों बच्चे सोए हुए थे। अब रोशन खान गालियां बक बक कर खामोश बैठा था और जेबरा उसके सर पर चीख रही थी। भाई मोहम्मद खान, रोशन खान ने हाथ जोड़कर मुझे कहा, तुम मेरे भी भाई हो, इसके भी भाई हो। खुदा के लिए इसे अपने साथ ले जाओ और इसे कुछ समझाओ। मैंने भाइयों जैसी बेतकल्फी का मुजाहरा किया। जेबरा को बाजू से पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। उसने जरा सी भी मुजाहमत न की और मेरे साथ मेरे क्वार्टर में आ गई। क्वार्टर में पहुंचते ही वो मेरे साथ लिपट गई और बच्चों की तरह रोने लगी। इतना रोई कि उसकी हिचकी बंध गई। मैंने सोचा कि इसे कुछ देर रोने ही दो। यहाँ बैठो जेबरा, मैंने उसे चारपाई पर बिठाते हुए कहा। रोशन ने परसों रात तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, सिवाय इसके कि तुम जरा सी बात पर इसके साथ लड़ाई झगड़ा करती हो। मुझे ये शख्स जहर लगता है खानू। जेबरा ने जल कर कहा, मुझे ये शख्स जहर लगता है। जहर का ये प्याला पी लो जेबरा, मैंने कहा, ये तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम इससे क्यों लड़ती झगड़ती हो। मैंने तुम्हें उस रोज कहा था कि मेरी और तुम्हारी किस्मत पर मोहर लग चुकी है, क्यों अपने आप को जलाती हो। मैं रोशन को तुम्हारे खिलाफ भड़काकर तुम्हें तलाक दिला सकता हूँ, लेकिन अपने इलाके के रिवाज को तुम जानती हो। तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? तुम्हारे ससुराल वाले मशहूर कर देंगे कि लड़की बदचलन है। एक बात कहूँ खानू, उसने मुझे तरसती हुई नजरों से देखते हुए कहा, इससे तलाक दिला दो और मेरे साथ शादी कर लो। तुम क्या समझती होगे? मैंने ऐसी बात नहीं सोची होगी, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता। तुम जानती हो कि मैं फांसी के तख्ते पर खड़ा हूँ। मेरे मरने के बाद लोग तुम्हें कहेंगे इसने एक डाकू और कातिल के पीछे अपने नेक खामद को छोड़ दिया था। तुम जब फांसी के तख्ते पर पहुंचेगे तो जेबरा तुम्हारे साथ उसी तख्ते पर खड़ी होगी। जेबरा ने कहा, तुम्हारे बाद मैं जिंदा रहूंगी ही नहीं। होश में आओ जेबरा, मैंने कहा, दिल की ना सुनो, अक्ल से सोचो, रोशन को कबूल कर लो। ऐसा भी हो सकता है किसी वक्त मैं पहचाना जाऊं और यही रोशन मुझे फांसी लगवा देगा। ये सुन लो खानू, जेबरा ने जोशीली और पुरअज़म आवाज में कहा, अगर रोशन के मुंह से तुम्हारे खिलाफ जरा सी भी बात निकली तो खुदा की कसम मैं उसे कत्ल कर दूंगी। मैं जेबरा को ज्यादा देर अपने साथ नहीं रखना चाहता था। रोशन खान ने तो देहात की मखसूस बेतकल्फी का मुजाहरा करते हुए मुझे कह दिया था कि इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन मैं डरता था कि जेबरा ज्यादा देर मेरे पास रही तो रोशन खान के दिमाग में कोई गलत बात न आ जाए। मैंने जेबरा को साथ लिया और उसे उसके क्वार्टर में ले गया। दोनों को कुछ डांट डपट कर और वापस आ गया। कर्नल नार्थ की मेम साहब को सजा क्या हुई? कर्नल नार्थ बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान
बन गया। मेरा तो ख्याल था कि वो निरा फौजी अफसर है जो करख्त आवाज में बात करने के सिवा कुछ जानता ही नहीं, लेकिन उसकी मेम साहब चली गई तो मुझे पता चला कि ये शख्स तो बड़ा ही जिंदा दिल है। वो बाज औकात मेरे साथ हल्का फुल्का मजाक भी कर लेता था। मोहम्मद खान, एक रोज उसने कहा, रोशन खान अपनी बीवी को ले आया है, तुम भी अपनी बीवी को ले आओ। मेरी बीवी मर गई है साहब बहादुर। ये तो बहुत अच्छा है, कर्नल नार्थ ने कहा। अब दूसरी बीवी ले आओ। कभी ले आऊंगा साहब बहादुर। हाँ हाँ, कर्नल नार्थ ने हंसते हुए कहा, जल्दी से दूसरी बीवी ले आओ। रोशन खान की बीवी की तरफ मत देखना। इसकी तरह मैं भी हंस पड़ा। उसने अपने लिए दूसरी बीवी का इंतजाम कर लिया था, लेकिन वो उसकी बीवी नहीं थी। वो मालूम नहीं किसकी मेम साहब थी। वो चौथे या पांचवें रोज उसके पास आती थी और बहुत देर बाद बंगले से निकलती थी। ये तो आपको बता चुका हूँ कि कर्नल नार्थ के बाद बंगले में मेरी बादशाही थी। एक रोज मेरी बादशाही डर से कांपने लगी। एक दो रोज बाद रोशन खान ने मुझे बताया था कि जेबरा के मामू का खत आया है, वो शायद इन्हें मिलने यहाँ आएगा। रोशन खान को मालूम नहीं था कि उसने मुझ पर कैसा बम फेंक दिया है। मुझे जेबरा के मामू के साथ कोई वाकफियत नहीं थी, लेकिन ये यकीनी अमर था कि वो मुझे पहचानता होगा। मैं दुआ करने लगा वो यहाँ न आए, लेकिन वो आ गया। शाम के वक्त मैं बंगले से अपने क्वार्टर की तरफ आ रहा था। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। रोशन खान के क्वार्टर के सामने एक देहाती खड़ा था। उसका लिबास हमारे इलाके का था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया। वो जेबरा का मामू था। शायद दिन के वक्त मेरठ पहुंचा था। मैंने मुंह फेर लिया और अपने क्वार्टर में घुस गया। ये शख्स मुझे जानता था, हमारे गांव में आता रहता था। मैं अंदर जाकर सोचने लगा, क्या इस शख्स ने मुझे पहचान लिया होगा। कभी ख्याल आता कि मैं अपनी मखसूस वर्दी में था, शायद उसने ना पहचाना हो। उसने मुझे 2 सेकंड के लिए ही देखा होगा। मैं फौरन मुंह फेर कर अपने क्वार्टर में दाखिल हो गया था। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता था। दिल पर वजनी सिल आप पड़ी। दिल इतना घबराया, मैंने वहां से फरार की सोच ली और ये भी सोचा कि किसी बहाने से इधर उधर हो जाऊं और ये शख्स चला जाए तो वापस आऊं। थोड़ी देर बाद रोशन खान एक प्लेट हाथ में उठाए हुए आ गया। लो भाई मोहम्मद खान, उसने प्लेट मेरे आगे रखते हुए कहा, मेरी बीवी का मामू आज दिन को आ गया है। उसके लिए तुम्हारी भाभी ने खीर पकाई है। कहती थी कि जाओ अपने भाई को दे आओ। मामू थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। मैंने इन्हें बताया है कि तुम हमारे ग्राई हो। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कपड़े पसीने से भीग गए हों। मिलना मिलाना हमारे देहात के रिवाज में शामिल था, लेकिन जेबरा के मामू की मुलाकात मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। मैंने एक बहाना गाड़ लिया। ना रोशन भाई, मैंने कहा, ये बुरा लगता है कि बुजुर्ग मुझे मिलने आए। मैं खुद इन्हें मिलने आऊंगा, लेकिन सुबह को आऊंगा। इस वक्त सर में बड़ा सख्त दर्द है। अगर अब आया तो बात भी नहीं कर सकूंगा। मैं सुबह जरूर आऊंगा। चलो ये ठीक है, रोशन खान ने कहा। वो भी इतने लंबे सफर के बाद थक गए हैं, शायद जल्दी सो जाएंगे। रोशन खान खीर की प्लेट छोड़कर चला गया, जो वहीं पड़ी रही जहां वो रख गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे लिए जहर छोड़ गया हो। मैं उसके मामू के सामने नहीं जाना चाहता था। अब मेरे लिए एक ही रास्ता था कि यहाँ से भाग जाऊं या कर्नल नार्थ को अपनी असलियत बता दूं और उसे कहूं कि साहब बहादुर, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुम मुझे बचा लो। और अगर देखूं कि उसे मेरी बजाय अपने कानून के साथ ज्यादा मोहब्बत है तो मैं भाग जाऊं। इन सोचों ने मेरे दिमाग का बुरा हाल कर दिया। नींद बिल्कुल उड़ गई थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे जहन पर गिरफ्तारी सवार थी। इसलिए मैं यही समझा कि मेरी निशानदेही हो गई है और पुलिस मुझे पकड़ने आई है। रात मेरे यहाँ कभी कोई नहीं आया था। 2-3 मरतबा कर्नल नार्थ को मेरी जरूरत पड़ी थी, लेकिन उसने मुझे बुलाने का ये तरीका इख्तियार कर रखा था कि बरामदे में खड़े होकर मुझे आवाज देता था। उसकी आवाज लाउड स्पीकर की तरह बुलंद थी। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। मैं बड़ी तेजी से उठा और चारपाई के नीचे चला गया। दीवार के बिल्कुल करीब फर्श की एक ईंट उखड़ी हुई थी और वैसे ही रखी हुई थी। ये मैंने उखाड़ी और रखी थी। इसके नीचे मैंने कागज और कपड़े में लिपटा हुआ अपना रिवाल्वर रखा हुआ था। मैंने जल्दी से रिवाल्वर उठाया। साथ ही एक कपड़े में लिपटी हुई गोलियां पड़ी थी, वो उठाई। मैंने मुसीबत के वक्त के लिए रिवाल्वर के सिलेंडर में 6 गोलियां डाल रखी थी। मैंने रिवाल्वर हाथ में लिया, गोलियों की पोटली जेब में डाली और सहन में निकल गया। अब दरवाजे पर पहले की निस्बत ज्यादा जोर से दस्तक हुई। सहन की दीवार मेरे कद से 6 इंच ऊंची थी। मैं पहलू की
ایک دیوار کی طرف چلا گیا۔ میں اچھلا اور میرا ہاتھ دیوار پر چلا گیا۔ دیوار پکڑ کر میں اوپر چلا گیا اور باہر کو کود گیا۔ میں ہر حرکت بجلی کی تیزی سے کر رہا تھا۔ میں دبے پاؤں کوارٹر کی نکڑ تک گیا اور دیکھا مدھم سی چاندنی میں مجھے دروازے پر زیوراں کھڑی نظر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے پھانسنے کے لیے زیوراں کو دانے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے ریوالور سیدھا کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی سامنے آئے گا وہ میرے ریوالور کا نشانہ بنے گا اور اس کے بعد میں میرٹھ کی رات میں گم ہو جاؤں گا۔ میں نے دھیمی آواز میں زیوراں کو پکارا۔ اس نے ادھر دیکھا تو میں ذرا سا سامنے ہوا، وہ دوڑ کر مجھ تک آئی۔ تم باہر سے آ رہے ہو؟ زیورا نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ بھاگ جاؤ خانو، فوراً بھاگ جاؤ۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں اکیلی ہوں خانو، میں اکیلی ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میرا خامند اور ماموں سوئے ہوئے ہیں، مجھے یہاں مت کھڑا رکھو، میرے ماموں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ریوالور کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے پوری بات سنانا چاہتی ہے تو اندر چلی چلے۔ ہاں ہاں، زیورا نے کہا، فوراً اندر چلو۔ میں بڑی تیزی سے دیوار پھلانگ کر اندر گیا، دروازہ کھولا اور زیورا اندر آ گئی۔ میرے ماموں نے تمہیں آج کہیں دیکھ لیا تھا، زیورا نے مجھے بتایا۔ شام کے بعد اس نے میرے خاوند سے تمہارا نام پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ تمہارا نام محمد خان ہے تو اس نے کہا کہ یہی ہے، میں نے ٹھیک پہچانا ہے۔ ماموں نے کہا کہ یہ خانو ڈاکو ہے اور اس کے سر کی قیمت 10,000 روپیہ ہے۔ یہ 10,000 روپیہ ہمیں آسانی سے مل سکتا ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے لیے 10,000 روپیہ ساری عمر کے لیے کافی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ ماموں نے مجھے کہا کہ تم نے بھی خانو کو اس کے گاؤں میں کبھی دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کی صورت سے بھی واقف نہیں، مجھ سے پوری بات نہ سنو خانو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ وہ دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صبح کرنل صاحب کو بتائیں گے کہ تم کون ہو اور کرنل صاحب کو یہ بھی بتائیں گے کہ تمہارے سر کی قیمت 10,000 روپے مقرر ہے۔ میرا خاوند کہتا تھا کہ کرنل صاحب فوراً کہے گا کہ محمد خان کو پتہ نہ چلنے دو اور تھانے سے پولیس لے آؤ۔ میں تمہیں سچ بتاتی ہوں کہ میرا خاوند نہیں مان رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے محمد خان کو بھائی کہا ہے، پیسہ ہاتھ کی میل ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔